Basically, we wait for another 2-3 minutes to join others or other students also. If they don't join, then one student I don't want to continue the class. But we wait for another 2-3 minutes. Let's see if others joins the class or not. ठीक है? तो अधिक टाइम वेट करते हैं कि बाकी लोग अटेंड करते नहीं देखते हैं, लेकिन which one student is not fruitful to in the class. बस 2-3 मिनट और दीजिए, थोड़ा वेट करते हैं. Hello, ma'am. अभी ऐसे नहीं वो कोर्स हो So we were discussing the chapter of director in the company side. Director means we have discussed the types of different kinds of director. So last class we discussed about various kinds of directors. किसी को कोई डाउट है अगर आप कौन कौन से लोग प्रेजेंट है क्लास में मैं भूल गया हूँ तो बेसिकली वी वर डिस्कसिंग पेज नंबर 400 एंड पेज नंबर 401 of
कंपनीज एक्ट 2013 का जो पार्ट है इन योर सिलेबस बुक स्टडी मटेरियल, पेज नंबर 397, 398, 400 एंड 401, ये सब हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था हाउ a director is getting appointed. ठीक है, how one director gets appointment in a company. The last was page number 401, appointment of directors. This was the last topic that we discussed in the last class. Now मैंने जानबूझ के एक डायरेक्टर का वो टाइप्स का डेफिनेशन मैंने स्किप मारा था, that is in your page number 398. कितने के लिखूं? लिखा है पेन की मतलब एकदम फास्ट। पेज नंबर 398, जो एक काइंड ऑफ डायरेक्टर मैंने लास्ट क्लास में स्किप मारा था, मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में मैं उसको पढ़ा दूंगा। इट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये हो गया पेज नंबर 398। I will first tell you the concept and history of independent director. What happens? The promoters are the owners of the company. The promoters are the owners of the company or the owner of the company. अगर एक है तो owner ज़्यादा है, promoters they are owners of the company. So by default, promoters themselves appoint as director in the company. जो promoter है he is owner and also he is director. और अब क्या, one person acting three different roles in the company. He is acting as a promoter, he is also the owner and he is also the director in the company. So अगर एक ही आदमी पूरी कंपनी को चलाने लगे तो naturally what happens, naturally fraud, mismanagement, financial irregularities, ये हो सकता है कंपनी में, ये हो सकता है। प्रोमोटर भी है, ओनर भी है, डायरेक्टर भी है, तो इससे क्या है, फ्रॉड होने का चांसेस ज्यादा है। फिर वो मिसमैनेज भी कर सकता है कंपनी को, फिर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा देगा, ठीक है, उसके बाद कंपनी का एसेट्स ज्यादा दिखाई देगा, फिर इक्विटी कैपिटल ज्यादा दिखाई देगा, दैट मींस अदर इक्विटी, रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग्स, जनरल रिजर्व ज्यादा करके दिखा देंगे, ऐसा कंपनी में होता है। ठीक है, तो व्हाट Companies Act 2013 brought the concept of independent director. If he is the promoter, if he is the owner, then he is not independent director. ठीक है, उसका इंडिपेंडेंसी नहीं है, he will be biased as per the Companies Act. He presumes that if the same person is promoter, owner and director also, he will be biased in his decision making. तो क्या नाम कौन है?
थोड़ी सी अपनी नायक कौन है? Sorry, voice is not audible. सर आपका माइक बंद है। ठीक है, अब ठीक है। Yes, sir. So this independent director, not all companies required to appoint. बाकी जो डायरेक्टर पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, with respect to those kinds of director, all the companies are required to appoint. But independent director, not all companies are required to appoint independent directors. Only few classes of companies whose eligibility criteria is given, only those companies need to appoint the independent director. First, the point is not all the companies required. कुछ classes है. Again, how many independent directors in the board of directors? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है टू रेस्ट्रिक्ट द फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज. नेक्स्ट, सभी कंपनी को अपॉइंट नहीं करना है, कुछ कंपनियों को अपॉइंट करना है. नेक्स्ट इज कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में. एक कंपनी में कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है. तो
सेक्शन 149(4), section, kindly remember this section because direct question may come in the exam that independent director is given under which section of the Companies Act 2013. Your answer will be section 149 subsection 4. Under section 149 subsection 4 the independent director is given. ठीक है, definition of independent director and the provisions regarding independent director is given. So how many numbers of independent director? How many numbers? Every listed company is required to appoint at least 1/3 of the total number of directors as independent director. तो जो not all companies required to appoint, उसमें से क्या फर्स्ट क्राइटेरिया है? All listed companies required to appoint independent director. लिस्टेड कंपनी क्या होंगे? लिस्टेड कंपनी सारे पब्लिक कंपनी होंगे, बिकॉज प्राइवेट कंपनी में यू कैन नॉट आस्क द पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर शेयर्स. ओनली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी यू कैन आस्क द सब्सक्राइब पर्सन्स टू पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर शेयर्स. तो लिस्टेड कंपनी मींस पब्लिक कंपनी. सो ऑल लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. हाउ मेनी? 1/3 of total number of directors. अब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक कंपनी में एटलीस्ट 2 इन केस ऑफ प्राइवेट, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट, 3 इन केस ऑफ पब्लिक में हमें डायरेक्टर होना जरूरी है. और मैक्सिमम we can have 15 numbers of directors also. But this maximum 15 we can also exceed by passing a special resolution in the general meeting. Special resolution of shareholders in the general meeting. अगर हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा ले तो हम लोग 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं इन अ कंपनी. लेट्स से हम लोगों ने कंपनी में 15 डायरेक्टर ही अपॉइंट किया है, हम लोगों ने उससे ज्यादा एक्सीड नहीं किया है. तो अगर 15 डायरेक्टर है उसमें से 1/3 होना पड़ेगा आपका आईडी. आईडी मींस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. 1/3, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. दैट मींस 5. Any fraction contained in such 1/3 number shall be rounded off as 1. In case of board contains the total number of directors 10, the company is required to appoint 4 the independent director. That is 10 divided by 3 is 3.1. Fraction is rounded off to 4. यहाँ पे 5 है, 5 का 1/3 is 15 है, 15 का 1/3 is 5. अगर 10 होगा डायरेक्टर, 10 का 1/3 है 3.1 कुछ होगा. लेकिन 3.1 हम लोग 3 डायरेक्टर नहीं, उनसे ज्यादा 3.1 से ज्यादा क्या राउंड ऑफ करने से क्या आएगा? 4 आएगा. हम लोग 4 डायरेक्टर हमें अपॉइंट करना ही पड़ेगा. ये भी क्वेश्चन आता है, एनी राउंडेड ऑफ in case of appointment of the independent director is to be any fraction of number of directors in case of independent director is to be rounded off to the next digit. 3.1 होगा तो हमें 4 अपॉइंट करना पड़ेगा. 4.1 आएगा तो 5 अपॉइंट करना पड़ेगा. ठीक है. 2.3 आएगा तो 3 अपॉइंट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स 1/3. 15 है तो 5, 10 है तो 4. 10 होने से 1/3 3.33 कुछ आता है, लेकिन हमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा. एंड इसको अपॉइंट करना है ऑल लिस्टेड कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है. उसके बाद लिस्टेड कंपनी के बाद और भी ऐसे कुछ कंपनियां हैं जो पब्लिक कंपनी है,
उनमें भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। लिस्टेड कंपनीज आर आल्सो पब्लिक कंपनी, बट अपार्ट पब्लिक कंपनी या तो लिस्टेड होगा या तो अनलिस्टेड होगा। अब जो 3 पॉइंट्स आएंगे, दीज आर फॉर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड में हमें कुछ नहीं देखना, जस्ट बिकॉज दे आर लिस्टेड without giving any requirements to the share capital, turnover or profit, we have to appoint independent director. But for unlisted public company हमें क्या क्या चेक करना है? पेड अप कैपिटल, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ सेक्शन 149(4) which deals with independent director. पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, 10 करोड़ से ज्यादा अगर पेड अप कैपिटल है किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का, उसके बाद ये है और, तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया में कोई फॉल हो जाए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, दैट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैव टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हम लोगों के पास 3 क्राइटेरिया है, किसी भी क्राइटेरिया में अगर हम लोग फॉल हो जाते हैं एज ए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वी हैव टू अपॉइंट पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, उसके बाद एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब ऑल टुगेदर, एग्रीगेट एक साथ, आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट्स 50 करोड़ और मोर। दादा आगो तो केनेके जाम तो हाँ ओके 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 अगेन हाउसिंग लोन प्लस डिपॉजिट, डिपॉजिट्स इन तीनों को मिला के 50 करोड़ और मोर। 3 क्राइटेरिया है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और ज्यादा, और टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट 50 करोड़ और मोर। आउटस्टैंडिंग लोन मतलब किसी बैंक से लोन लेके रखा हुआ है, डिबेंचर आउटसाइडर्स कैपिटल, डिपॉजिट किसी पब्लिक ने पैसा डिपॉजिट करके रखा है कंपनी में, उस पब्लिक को कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी का पैसा जुड़ा हुआ है, इसीलिए इन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट लिस्टेड, बाकी 3 पॉइंट्स है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप, टर्नओवर, एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब ये रीपे करना बाकी है, ये दिस आर आउटस्टैंडिंग अमाउंट दैट द कंपनी हैव टू रीपे टू द लोन गिवर, टू द डिबेंचर्स एंड टू द डिपॉजिट होल्डर्स। इनको क्या करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। और क्यों है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा एक आदमी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा आदमी है जो आदमी कंपनी के साथ, जिस आदमी का कंपनी के साथ कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, he is fully independent from the promoters, from the owners, from the employees, from the company as a whole, he is fully independent। उसका भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, जो इंडिपेंडेंट होगा, जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा कंपनी के साथ, only and only that person can act as independent director। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट
concept of why independent director in how in which are the companies independent director is required and how many independent directors, that is one third at least, मतलब मिनिमम वन थर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना पड़ेगा और फ्रैक्शन को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे टू द नेक्स्ट डिजिट। ये हो गया द ओवरव्यू ऑफ independent director. Now independent director का मीनिंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 149(4) और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीनिंग है सेक्शन 149(6) में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग दिया गया है। So the term independent director is defined under section 149 subsection 6. Very important आपको ध्यान देना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग बताया गया है अंडर सेक्शन 149(4) इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसेप्ट, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेफिनेशन दिया गया है अंडर सेक्शन 149(6). डेफिनेशन इज गिवन अंडर 149(6) and concept is given under 149(4). So other than मैनेजिंग डायरेक्टर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके पास मैनेजिंग डायरेक्टर जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके पास सब्सटेंशियल पावर दिया गया है, जिसको सब्सटेंशियल पावर दिया गया है टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन देता है सब्सटेंशियल पावर? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स collectively gives substantial power to the managing director। ठीक है, so he is the most powerful person, because he is the most powerful and he have all the substantial power, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाया जाएगा। इसका इंडिपेंडेंसी में डाउट है, so he is not fall under category of independent director। उसका मैंने क्या कहा था, होल टाइम डायरेक्टर, WTD। द होल टाइम डायरेक्टर इज क्या है? हु गिव्स होल ऑफ हिज टाइम टू द कंपनी। दैट मींस होल टाइम डायरेक्टर इज ए एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सो होल टाइम डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाया जाएगा। एंड नेक्स्ट, और नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट विल अपॉइंट वन पर्सन एज हिज नॉमिनी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है, प्रेसिडेंट अपॉइंट समवन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट मींस नॉमिनी डायरेक्टर। और कोई बैंक से लोन लेके रखा है, उस बैंक ने किसी एक आदमी को डायरेक्टर बना के रखा है, 10,000 करोड़ का लोन लिया है किसी बैंक से, so the bank have appointed somebody as in director, nominee director in the company. That person is also related to the company because that company has taken loan from that bank, so there is a relation of that director with the company। so as managing director का भी relation है, whole time director का भी relation है, nominee director का भी एक relation है with the company। that is why these persons are not categorized as independent director। apart from this person, जो criteria दिया है, everybody will fall under the concept of, under the definition of independent director। अभी तक किसी को, दोनों को कोई डाउट तो पूछिए। सुष्मिता एंड प्रतीक्षा, अगर डाउट है तो पूछिए। प्रतीक्षा, कोई डाउट? ठीक है, कम टू पेज नंबर 398 अगेन। इनको छोड़ के बाकी सारे लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है कि वो आदमी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है।
Point number 1, who in the opinion of the board here means board of director, is a person of integrity and possesses relevant expertise and experience. मतलब जिसका जो ट्रस्टवर्दी है, जिसका इंटीग्रिटी लेवल हाई है, जिसके पास एक्सपर्टीज है और जिसके पास एक्सपीरियंस है. एक्सपर्टीज मतलब that person can go through the financial statements of the company. उसको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, नोट्स टू दी अकाउंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनी से पता है. ठीक है, मतलब जिसको कंपनी आसानी से बुर्बक नहीं बना सकता है. ठीक है, तो इसके पास एक्सपर्टीज है, उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फील्ड में उसका एक्सपर्टीज है. नेक्स्ट, उसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, उसने कहीं पे कुछ ऐसा काम किया है जिसका एक्सपीरियंस यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का उसके पास एक्सपीरियंस हो चुका है. तो फर्स्ट इज ही इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, तो सच का आदमी है, एंड हैविंग सम एक्सपर्टीज एंड आल्सो एक्सपीरियंस. So other than managing director, whole-time director, nominee director, a person who is of integrity, who is of expert in reading the financial statements and who have some experience, he can be appointed as independent director. Next, he shall not be promoter of the company or its holding subsidiary associate. This is company, इसका इस कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी, इस कंपनी कोई सब्सिडी कंपनी और इस कंपनी कोई एसोसिएट कंपनी. प्रोमोटर क्या कहा? प्रोमोटर इज द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी. सो प्रोमोटर को हम लोग अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देंगे तब जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, फ्रॉड है, मिसमैनेजमेंट है, उसको उसका चेक नहीं हो सकता है. इसलिए प्रोमोटर ऑफ होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी आर नॉट अलाउड टू अपॉइंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. नेक्स्ट पॉइंट है, he shall not be related to the promoters or directors in the company, its holding company, subsidiary company or एसोसिएट कंपनी. एक कंपनी है, एक कंपनी है, उसका प्रोमोटर है एंड उसका डायरेक्टर भी है. फिर इस कंपनी का होल्डिंग कंपनी हो सकता है, फिर इस कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी हो सकता है, सब्सिडी कंपनी हो सकता है, फिर इस कंपनी का एसोसिएट कंपनी भी हो सकता है. जिसको हम लोग अपॉइंट करेंगे, द पर्सन हु इज गोइंग टू अपॉइंट एज आईडी, द पर्सन हु इज गोइंग टू अपॉइंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर shall not be related to what? Whom? Related to the director, related to the promoter of the company or its holding company or its subsidiary company or its associate company. होल्डिंग कंपनी का प्रोमोटर डायरेक्टर से भी कोई रिलेशन नहीं होना पड़ेगा, सब्सिडियरी कंपनी का प्रोमोटर डायरेक्टर उनसे भी कोई रिलेशनशिप नहीं होना पड़ेगा, फिर एसोसिएट कंपनी का भी प्रोमोटर डायरेक्टर है उनसे भी कोई रिलेशन नहीं होना पड़ेगा, तब जाके वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है. पॉइंट नंबर 3 ये है. नेक्स्ट 1, 2, 3 हमने समझ गया. 1 में बोला इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज. 2 में ये बोला कि प्रोमोटर नहीं होना पड़ेगा. 3 में ये बोला कि उस प्रोमोटर डायरेक्टर से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होना पड़ेगा. प्रोमोटर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, the holding company, the subsidiary company and the associate company. Point number 4 क्या है? Point number 4, he shall not have any
पेक्यूनियरी रिलेशनशिप, पेक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब मनीटरी रिलेशनशिप, इधर बोला है रिलेटेड, इधर ऊपर पॉइंट नंबर 3 में कोई भी रिलेशन हो, फैमिली रिलेशन हो, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो, डजंट मैटर। पॉइंट नंबर 4 बोला है कि पेक्यूनियरी रिलेशनशिप, दैट मींस मनीटरी रिलेशनशिप। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेक्यूनियरी। द पेक्यूनियरी रिलेशनशिप का मतलब है मनीटरी रिलेशनशिप, मनी ट्रांजैक्शन में कोई रिलेशनशिप नहीं होना पड़ेगा। He shall not have any pecuniary relationship other than remuneration as such director or having transaction not exceeding 10% of his total income or such amount as may be prescribed with the company, its holding company, subsidiary company or associate company or their promoters, directors during the 2 immediately preceding financial year or during the current financial year. Let's say 21-20 में फाइनेंशियल ईयर है, मिस्टर XYZ इज गोइंग टू अपॉइंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, या तो पिछले 2 FY, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर और करेंट ईयर। करेंट ईयर इज 21-22, 2 previous year, previous financial year 2021, 1920, 1920 में 2021 में कोई रिलेशनशिप नहीं होना पड़ेगा, उसमें भी क्राइटेरिया है। और जो करंट ईयर है, जिस साल वो अपॉइंट होने जा रहा है 21-22 इन आवर एग्जांपल, वहां पर भी उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होना पड़ेगा ऑफ मॉनेटरी नेचर। हाँ, वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसके लिए उसका कुछ रेम्यूनरेशन पेमेंट हो सकता है, उसको नहीं हम लोग काउंट करेंगे। जो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको कुछ पैसा मिलेगा, रेम्यूनरेशन, सैलरी नहीं बोला है, रेम्यूनरेशन बोला है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कुछ रेम्यूनरेशन अगर मिलता है उसको काउंट नहीं करेंगे। एंड 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, 2 क्राइटेरिया है। मिस्टर XYZ का अगर टोटल इनकम 1 करोड़ है, 10 लाख तक मॉनेटरी रिलेशनशिप हो सकता है। मतलब 1 करोड़ अगर टोटल इनकम है, कंपनी में, कंपनी से अगर कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है अप टू 10 लाख, बीइंग एज ए डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो चलेगा। 10% से ज्यादा ऑफ इस टोटल इनकम से अगर ज्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगा उसको, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। 2 क्राइटेरिया, रेम्यूनरेशन और एनी ट्रांजैक्शन मोर देन 10% ऑफ टोटल इनकम। लेस देन 10% टोटल इनकम तक अलाउड है, मोर देन 10% टोटल इनकम अलाउड नहीं है। इसके साथ क्या है, मिस्टर XYZ का कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, ये मॉनेटरी रिलेशनशिप, रेम्यूनरेशन और 10% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। ये पैसा कहां से मिल सकता है? This relationship can be with the promoter, director, company, holding company, subsidiary company, associate company. 10% total income from promoter or director, up to 10%, total income from promoter, director, or the company, or the holding company, or the associate company, or the subsidiary company. वहां तक अगर है तो he will be appointed as independent director, otherwise he cannot be appointed as independent director. This monetary relationship shall not be with the promoter, director, holding company, associate, subsidiary company. Up to 10% is total income. Total income किसका? मिस्टर XYZ का, कंपनी का नहीं, मिस्टर XYZ का टोटल इनकम अगर अप टू 10% है तब अपॉइंटमेंट हो सकता है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और उससे ज्यादा है तो अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। ये 10% ऑफ टोटल इनकम कब चेक करेंगे? या तो ड्यूरिंग द करंट ईयर 21-22 और 2 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1920, 2021, इन 2 सालों में
मैक्सिमम 10% इसका टोटल इनकम तक हम लोग चेक करेंगे, होना नहीं चाहिए, तब जाके वो अपॉइंटमेंट हो, उसका अपॉइंटमेंट हो पाएगा एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। इसको थोड़ा ध्यान देना, इसमें बहुत सारे पॉइंट है। 2 साल करंट ईयर रेम्यूनरेशन एज अ डायरेक्टर, दैट मींस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई पेमेंट मिलता है, और 10% टोटल इनकम, इसके साथ प्रोमोटर के साथ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, प्रोमोटर डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, प्रोमोटर डायरेक्टर ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी, प्रोमोटर डायरेक्टर ऑफ द एसोसिएट कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप होना नहीं पड़ेगा मोर देन 10% इन द करंट ईयर और द प्रीवियस टू फाइनेंशियल ईयर। He cannot be appointed as independent director. Next, point number 5. अब तक 1 से 4 तक, पॉइंट 1 से 4 तक उसका हम लोग रिलेशनशिप देख रहे थे कंपनी के साथ डायरेक्टली। 1 to 4 डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द पर्सन, डायरेक्ट रिलेशनशिप, yes, direct relationship of the person who is going to appoint as an independent director। 1 to 4 डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या है, उसका नहीं, none of his relative, none of whose or his whose relative। अब पॉइंट नंबर 5 में क्या चेक करेंगे, 1 से 4 तक उसका रिलेशनशिप हम लोगों ने चेक कर लिया। पॉइंट नंबर 5 में उसका रिलेटिव का हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे। अब नाउ इन पॉइंट नंबर 5 ही इज नॉट इन्वॉल्व, इन पॉइंट नंबर 5 हिज रिलेटिव्स आर इन्वॉल्व। पॉइंट नंबर 5 का 1 में क्या है, उसका रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी, कोई शेयर खरीदा हो, कोई डिबेंचर खरीदा हो, कोई प्रेफरेंस शेयर खरीदा हो, इट्स होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग टू इमीडिएटली preceding financial year or during the current year, provided that the relative may hold security or interest in the company of face value not exceeding 50 lakh rupees or 2% of the paid up capital of the company, its holding subsidiary associate company or such higher amount as may prescribed, up to 2% or rupees 50 लाख तक अलाउड है। उससे ज्यादा अगर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट है इन द कंपनी, इन द होल्डिंग, इन द सब्सिडी, इन द एसोसिएट, वो आदमी अपॉइंट नहीं हो सकता एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ही इज नॉट होल्डिंग सिक्योरिटी, हिज रिलेटिव्स आर होल्डिंग सिक्योरिटी, अप टू 2% और 50 लाख दोनों अलाउड है, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा अगर होता है सिक्योरिटी इन द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी, तब वो पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड ये 2% 50 लाख उसका नहीं है, उसका कोई रिलेटिव का है। अब रिलेटिव का डेफिनेशन आपको देखना पड़ेगा, सेक्शन 2 में देखना पड़ेगा, हु आर ट्रीटेड एज रिलेटिव अंडर कंपनीज एक्ट 2013। रिलेटिव में कौन कौन आता है, उसका फादर, मदर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, ये सब क्या है, रिलेटिव है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हिसाब से। इनका कोई सिक्योरिटी नहीं होना पड़ेगा इन द कंपनी और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, बट अप टू 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल और 50 लाख तक हो सकता है। तब अगर है तो अपॉइंट होगा, उससे ज्यादा हो अगर है तो अपॉइंटमेंट नहीं होगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 5 का 1। 5 का 2 में क्या है, is indebted। अब
सेम पॉइंट नंबर 5 में क्या देखना है, हमें रिलेटिव देखना है, उसका रिलेटिव इनडेप्टेड, उससे रेट ने कोई धार लिया है, उधार लिया है, कुछ पैसा देना है कंपनी को, इज इनडेप्टेड टू द कंपनी। और ये जो पिछले 1 में क्या 1 पॉइंट में 2% और 50 लाख कब चेक करेंगे, इन द करेंट ईयर और 2 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, 2 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और इन द करेंट ईयर हम लोग उसको चेक करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में ध्यान देना, करेंट ईयर और 2 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग उसको देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। इंडेप्टेड, इंडेप्ट मतलब उसका रिलेटिव, रिलेटिव relative indebted to the company, to the holding company, to the subsidiary company, to the associate company, or their or इनका promoters और डायरेक्टर्स, या तो कंपनी के साथ रिलेशनशिप और उन लोगों का प्रोमोटर के साथ रिलेशनशिप और उन लोगों का डायरेक्टर के साथ रिलेशनशिप, in excess of such amount as may be prescribed during the 2 immediately preceding financial year, 2 previous FY और current FY। ठीक है, कोई भी रिलेटिव का इनडेप्ट, रिलेटिव इनडेप्ट होना नहीं पड़ेगा। दैट मींस किसी रिलेटिव ने कंपनी से कोई पैसा लिया हो, या तो होल्डिंग कंपनी से कोई पैसा लिया हो, या तो सब्सिडी कंपनी से कोई पैसा लिया हो, या तो एसोसिएट कंपनी से पैसा लिया हो, या तो इन तीनों कंपनी का, इन चारों कंपनी का प्रोमोटर और डायरेक्टर से कोई पैसा लिया हो। कितना अमाउंट लिया है ये नहीं बताया गया है। तो अगर किसी ने, उसका रिलेटिव ने कोई पैसा लेके रखा है, तब तो वो उसका इंडिपेंडेंस नहीं होगा। दैट इज व्हाई ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हिज रिलेटिव शैल नॉट बी इंडेप्टेड in the 2 previous financial year or in the current year to the company, to the holding company, to the subsidiary company, to the associate company or their, सबका प्रोमोटर और सबका डायरेक्टर के साथ कोई पैसा उधारी नहीं होना पड़ेगा। किसका? उसका रिलेटिव का, जो आदमी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, has given any guarantee, इस कोई गारंटी दे रखा है, ऊपर डायरेक्ट लोन लिया है पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 3 में किसी ने लोन लिया है और उसका गारंटी दिया है, गारंटी बाय रिलेटिव। पॉइंट नंबर 2 में डायरेक्ट उसने लोन लिया है, पॉइंट नंबर 3 में उसने लोन नहीं लिया है, उसने बस किसी और ने लोन लिया है, उस लोन का गारंटी दे रखा है। has given a guarantee or provided any security in connection with indebtedness of any third person to the company, its holding company, subsidiary company, associate company or their promoters, directors of such holding subsidiary, holding company for such amount as may be prescribed in the 2 immediately preceding financial year or during the current year, 2 previous year और current year में कोई गारंटी दे रखा है, लोन लिया है, लोन बाय थर्ड पर्सन। रिमेंबर वी आर चेकिंग द रिलेशनशिप ऑफ द रिलेटिव, ना कि दैट पर्सन का। कंपनी 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 इनका प्रोमोटर और डायरेक्टर, ठीक है, प्रोमोटर डायरेक्टर और ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। इधर प्रोमोटर डायरेक्टर सबसे और एसोसिएट का नहीं मांगा है, प्रोमोटर डायरेक्टर मांगा है सिर्फ होल्डिंग कंपनी का, उस कंपनी का, उस कंपनी का होल्डिंग कंपनी का प्रोमोटर डायरेक्टर, उस कंपनी का प्रोमोटर डायरेक्टर और सबसे कंपनी और एसोसिएट के। प्रोमोटर डायरेक्टर एसोसिएट का और सबसे का नहीं बोला है, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का ही प्रोमोटर डायरेक्टर बोला है, एसोसिएट सबसे का नहीं बोला है। लेकिन होल्डिंग कंपनी एज ए कंपनी, एसोसिएट कंपनी एज ए एसोसिएट कंपनी, सबसी कंपनी एज ए सबसी कंपनी क्या है, रिलेशनशिप है। बाय व्हाट मींस,
कोई रिलेटिव नहीं, कोई थर्ड पर्सन ने लोन दिया है और उस रिलेटिव ने उस लोन का गारंटी दे रखा है, तब वो आदमी अपॉइंट नहीं हो पाएगा। जो आदमी अपॉइंट होने जा रहा है उसका रिलेटिव ने गारंटी दे रखा है, तो वो आदमी अपॉइंट नहीं होगा एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इन द पॉइंट नंबर 5 का 4 हैज एनी अदर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप, इसका रिलेटिव का पेक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब मॉनेटरी रिलेशनशिप, पेक्यूनियरी रिलेशनशिप transactions with the company or its subsidiary company or holding company or associate company amounting to 2% or more of its gross turnover or total income singly or in combination with the transaction referred to in subsection 1 to 3। 1 to 3 में अगर कोई 2% और मोर gross turnover of the company, holding company, subsidiary company, associate company, holding company, holding subsidiary associate company, कोई दूसरा रिलेशनशिप, पहला तो शेयर खरीदना, दूसरा लोन लेना, तीसरा लोन किसी और ने लिया है उसका गारंटी देना, इनको छोड़ के कोई दूसरा अगर ट्रांजैक्शन होता है उस आदमी का रिलेटिव का 2% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द कंपनी का ग्रॉस टर्नओवर से अगर 2% और ज्यादा कोई दूसरा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है with the associate company or with the subsidiary company or with the holding company or with the company itself, तभी भी वो आदमी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। लेकिन ध्यान देना ये रिलेशनशिप उसका नहीं, उसका रिलेटिव का है। रिलेटिव इज हैविंग 2% और मोर ट्रांजैक्शन ऑफ एनी अदर not referred above 1 to 3 with the company, associate company, subsidiary company, holding company, then he cannot be appointed as union director। ये जो 2% है हम लोग सिक्योरिटी में नहीं देखेंगे, लोन में नहीं देखेंगे, लोन का गारंटी में नहीं देखेंगे, कोई दूसरा ट्रांजैक्शन है, माल सप्लाई का, कोई वेंडर है, कोई सप्लायर है, कंपनी को कोई सप्लाई करता है, कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस हिसाब का कोई रिलेशनशिप नहीं होना पड़ेगा इसका रिलेटिव का। अगर रिलेटिव का रिलेशनशिप है तब वो आदमी अपॉइंट नहीं हो सकता एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट हो गया पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, दोनों है, नीदर द पर्सन nor his relative। पॉइंट नंबर 1 to 3 था द पर्सन, पॉइंट नंबर 5 था द रिलेटिव, पॉइंट नंबर 6 में क्या है, पर्सन और रिलेटिव दोनों हैं। अभी दोनों के लिए ये क्राइटेरिया आ जाता है। दोनों के लिए क्या है कि वो और उसका रिलेटिव holds or has held the position of a key managerial person KMP or is or has been employee of the company or its holding subsidiary associate company in any 3 financial year immediately the preceding financial year। हम लोग 21-22 में देख रहे हैं, अब 3 previous 3 financial year में उसको या तो उस that person or his relative shall not be KMP or employee in the company, in the holding, in the subsidiary, in the associate। अगर that person or his relative KMP है और employee है in that company
where he is going to appoint as independent director, or in the holding company, or in the subsidiary company or associate company, then that person cannot be appointed as independent director. ठीक है, that person is key manager person, KMP और employee, दोनों में से दोनों क्राइटेरिया हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 का 1 है, neither that person nor his relative shall be an KMP or employee in the company, holding company, subsidiary company or the associate company. पॉइंट नंबर 1 ये हो गया. अगर वो और उसका रिलेटिव KMP एम्प्लॉय है in the 3 previous financial year, then that person cannot be appointed as independent director. ये अगर 3 साल खत्म होने के बाद he can be appointed as independent director. 3 साल तक he is not allowed. 3 साल जैसे खत्म हो जाएगा, according to this point, this criteria, he can be appointed, but only after completion of 3 years. अब 6 का 2, point number 2, is or has been an employee or proprietor or partner in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed, a firm of auditors or company secretaries or in practice or cost auditors of the company, or any legal or consulting firm that has hold any transactions with the company amounting to 10% or more gross turnover of such firm. तो अभी क्या है, 3 फाइनेंशियल ईयर में या तो दैट पर्सन और हिज रिलेटिव, और इस कंपनी का क्या है, इस कंपनी का ऑडिट फर्म है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, और कंपनी सेक्रेटरी है, और कॉस्ट ऑडिट जो सीएमएलओ करते हैं, कॉस्ट ऑडिट है, और कोई लीगल फर्म है, लीगल फर्म मतलब लॉयर, लीगल फर्म, और इस लीगल फर्म का 10% और मोर 10% or more of gross turnover. ऐसा एक लीगल फर्म है जिसका 10% और मोर ग्रॉस टर्नओवर इस कंपनी से आता है. ऐसा ऑडिटर्स है जो इस कंपनी का ऑडिट करता है. ऐसा कंपनी सेक्रेटरी है जो इस कंपनी का काम करता है. ऐसा एक कॉस्ट ऑडिटर है जो इस कंपनी का कॉस्ट ऑडिट करता है. अगर इन 3 प्रीवियस फाइनेंशियल में या तो वो और उसका रिलेटिव, स्टैट्यूटरी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट ऑडिटर, लीगल फर्म जिसका 10% और मोर टर्नओवर इस कंपनी से आता है, अगर उसका एम्प्लॉई है और उसका ऑडिटर्स है, देन दैट पर्सन इज आल्सो नॉट अलाउड टू अपॉइंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अभी या तो दैट पर्सन इज इन द ऑडिटर्स फर्म और लीगल फर्म, और उसका रिलेटिव इन द ऑडिटर्स फर्म, कॉस्ट ऑडिट, कंपनी सेक्रेटरी, स्टैट्यूटरी ऑडिट और लीगल फर्म. अगर कोई एम्प्लॉई है इन द एम्प्लॉई है इन द 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, देन ही इज नॉट अलाउड टू अपॉइंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ये हो गया पॉइंट 6.2. ठीक है, ये हो गया लास्ट. उसके बाद लास्ट 2 पॉइंट और बाकी है. तो दादा काट ला से ठीक है, जितना टाइम वो पढ़िए. सेकेंड लास्ट पॉइंट नंबर 6 का 3, द पर्सन और उसका रिलेटिव, द पर्सन और उसका रिलेटिव holds together with his relative 2% or more total voting power of the company. This person प्लस उसका रिलेटिव, if 2% और मोर वोटिंग पावर है, शेयर नहीं है, ठीक है,
वोटिंग पावर है। किसी किसी कंपनी का शेयर, कंपनी लिमिटेड में गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकता है, और डिफरेंट वोटिंग राइट्स भी हो सकता है। इक्विटी से विच डिफरेंशियल राइट्स टू वोट, राइट्स टू डिविडेंड, हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा देख लेना। इक्विटी से विच डिफरेंशियल राइट्स, राइट टू वोट और राइट टू डिविडेंड। दैट पर्सन and the relative, if 2% or more voting power है in the company, then that person cannot be appointed as independent director। ठीक है? हेलो वो पर्सन जो अपॉइंट होने जा रहा है और उसका रिलेटिव दोनों मिलकर अगर 2% और मोर वोटिंग पावर लेता है उस कंपनी में, और ये कोई फाइनेंशियल का नो कैलकुलेशन, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, या तो करंट या तो प्रीवियस, अगर ऐसा कभी हुआ है जहां 2% और मोर वोटिंग पावर लेके रखा था या लेके रखा हुआ है, तब दैट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, ठीक है सर, अजमल एक बार कंडीशन। नेक्स्ट 3, लास्ट 6 का 3 is a chief executive or director of any non-profit organization and PO or NGO, and non-profit organization या non-government organization is a chief executive or director, is a chief executive or director of any non-profit organization that receives 25% or more of its receipt from the company, any of its promoters, directors, or its holding subsidiary associate company, or that holds 2% or more of the total voting power of the company. So ऐसा एक NGO है, ऐसा NPO है, where the person or relative is related. That person or relative is chief executive director, chief executive or director. The person or his relative is chief executive or director in the NGO or NPO. Remember that person or his relative is chief executive or director in the non-government organization, non-profit organization जिसका 25% or more रिसीव्ड। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन मिलता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है, कहां से मिलेगा वो रिसीप्ट? कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट और प्रोमोटर, इनका प्रोमोटर और डायरेक्टर, या तो प्रोमोटर ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, और प्रोमोटर डायरेक्टर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, उनसे अगर 25% और ज्यादा रिसिप्ट इन एनजीओ और एनपीओ को मिला है, जहां वो आदमी और उसका रिलेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर है। पर्सन इज चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर इन द एनजीओ और एनपीओ, और एंड दैट एनजीओ एंड एनपीओ have received 25% or more contribution from the company, holding company, associate company, promoter, director, then that person cannot be appointed as independent director. और ये हो गया 25% का रिसिप्ट। If that NGO NPO is holding 2% or more voting rights in the company, now first criteria is 25% or more receipt, 25% और ज्यादा रिसीविंग इस कंपनी से आया है, उसका होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट और उसका प्रोमोटर डायरेक्टर से आया है, किसको मिला है? एनजीओ एनपीओ को मिला है, और उस एनजीओ एनपीओ में द पर्सन और रिलेटिव इज चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर, और इसको
हटा के अगर if this NGO NPO is having 2% or more voting rights in the company and in that NGO NPO the person or relative is chief executive or director, then also he cannot be appointed as independent director. इसका मतलब यह है किसी भी कहीं से भी कोई भी रिलेशनशिप कंपनी के साथ उस आदमी का होना ही नहीं पड़ेगा, then only he can be appointed as independent director. And the point is not only his relationship, his and his relative relationship also need to be considered to check whether he can be appointed as independent director or not. सबसे लास्ट who possess such other qualifications as may be prescribed. तो लास्ट वाला पॉइंट ऐसा है कि कोई भी पॉइंट कंपनी से डाल सकता है कहीं किसी भी टाइम. So these are the criteria for a person who is going to be appointed as independent director. First three criteria डायरेक्ट उस आदमी का. नेक्स्ट क्राइटेरिया 5 नंबर क्राइटेरिया 5 में 4 पॉइंट है उसका और उसका रिलेटिव का क्राइटेरिया. उसके बाद उसका उस रिलेटिव का किसी स्टेटरी फॉर्म में, लीगल फॉर्म में, एनजीओ में, ये सब हम लोग उसको चेक करेंगे. इन सब क्राइटेरिया का सिलेक्शन होने के बाद अगर कोई आदमी मिलता है जो कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप है ही नहीं उस कंपनी के साथ, only that person can be appointed as independent director in the company. ठीक है. This is all about the definition of independent director and the concept independent director मैंने बोल लिया. In what are different companies we need to appoint independent director and how many independent director in their company मैंने आपको बता दिया है. अब प्रतीका एंड सुष्मिता, if you have doubt regarding any points, कुछ भी बोलना है, पूछना है, काइंडली पूछिए. Because this independent director section 154 उसका concept है, section 146 उसका definition, दोनों very very important from your inter exam point of view, also from your professional career point of view. आप लोगों को ये ध्यान देना है उस कंपनी का, या तो उस कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर, उस कंपनी का होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सबको चेक करना है, तब जाके ये इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होने का क्राइटेरिया फुलफिल हो पाएगा. ठीक है प्रतीक्षा? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir.
एक बार देख लेना. I know you will have some doubt, but you are now hesitant to ask. Kindly देखना. With this, we have completed the different kinds of director. And in the last class, मैंने ये बताया था कि डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होने से पहले एक आदमी को डीन नंबर लेना जरूरी है. जैसे हर एक आदमी का पैन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर, उसी हिसाब से जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहा है, he have to acquire, he have to take डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीन नंबर लेना पड़ेगा. ठीक है, जब तक डीन नंबर नहीं आएगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तब तक that person cannot be appointed as director. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन नंबर जरूरी है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जरूरी है, डायरेक्टर बनने के लिए डी नंबर जरूरी है. और DIR 2 से वो कंसेंट देता है कि हाँ, DIR 2 में वो कंसेंट देता है कि he is going to appoint as, he has no objection to appoint as director. And DIR 12 form, DIR 12 is for appointment of director. DIR 12 is appointment of director. DIR 11 is resignation of director. ऐसा नहीं है कोई आदमी डायरेक्टर हो गया वो सालों तक डायरेक्टर ही बनता रहेगा. उसको कंपनी धक्का मार के निकाल सकती है और वो खुद रिजाइन भी मार सकता है. तो रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर हो गया आपका DIR 11. Now come to page number 403. सेक्शन 164 क्या है? कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है. ऐसे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है. अदरवाइज कोई क्वालिफिकेशन नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए. कोई CA, CMA, डॉक्टर, इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए. सिंपल एक आदमी जिसको लिखना पढ़ना आता है, he can be appointed as director. ऐसा कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है to be eligible to get appointed as director apart from conditions criteria given in independent director. independent director में क्वालिफिकेशन नहीं दिया है, कुछ कंडीशंस और क्राइटेरिया मेंशन है. लेकिन सेक्शन 164 में कुछ डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन है. अगर इन सेक्शन 164 में इन क्राइटेरिया में अगर कोई इन पॉइंट्स में अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, देन he cannot be appointed as director in the company. Hello?
हाँ बोल। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ। ठीक है। तो 164 में कुछ कुछ डिसक्वालिफिकेशंस का पॉइंट्स दिया है। ऐसा तो क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, लेकिन डिसक्वालिफिकेशन मेंशन है। अगर कोई डायरेक्टर इस डिसक्वालिफिकेशन में फॉल हो जाता है, देन ही इज नॉट एलिजिबल टू अपॉइंट एज डायरेक्टर। चाहे कोई भी डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट हो, नॉर्मल डायरेक्टर हो, एडिशनल डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, फुल टाइम डायरेक्टर हो, इन अगर डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स में फॉल होता है तो ही इज नॉट एलिजिबल। फर्स्ट, he is of unsound mind and stands so declared by a competent court। अगर unsound mind है मतलब उनका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है। State of mind in the sense he is not capable to read and write the financial statements, the affairs of the company, because his mind is not stable. That is why he is termed as unsound mind। That unsound mind is not disqualified from getting appointed as a director। And then undischarged insolvent, that means a person who cannot repay his debts। उसका कोई उधार है, एक्स्ट्रा जब एनी उधार हो, और उसको अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बोल दिया है कोर्ट ने। ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कौन बोलता है? कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोल दिया कि दैट पर्सन इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। दैट मींस इंसॉल्वेंट मींस द पर्सन हु कैनॉट रीपे हिज लायबिलिटी, so he is disqualified। And he is convicted, point number D, he is convicted of court of any offense, whether involving moral turpitude or otherwise, and sentenced to imprisonment for not less than 6 months, and the period of 5 years has not been elapsed from the date of expiry of the sentence। अगर 6 महीने से ज्यादा वो किसी ऑफेंस के वजह से जेल में है, और वो जेल खटने का टाइम 5 साल, जेल खटने का जो टाइम है 5, उसके बाद 5 साल हुआ नहीं है। दैट मींस आज वो 12 महीने तक, लेट्स से 12 महीने का, आज 2021 में उसने जेल में, वो आदमी जेल में था, और ये 21 के 5 साल बाद 1 2 3 4 5 साल हुआ नहीं है, तो 5 साल तक ही कैनॉट बी, ही इज डिस्क्वालिफाइड टू गेटिंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। 12 महीने जेल खाने के बाद और 5 साल होने के बाद, 5 साल इसका 5 साल खत्म होने के बाद ही he is qualified to appoint as a director। Till this 5th year is not completed, he is not qualified, he is disqualified to getting appointed as a director। ये हो गया। And then if a person has been convicted of any offense and sentenced in respect thereof to imprisonment for a period 7 years or more, he shall not be appointed as a director in any company। अगर and किसी का 7 ईयर्स से ज्यादा कोई जेल में है, 7 ईयर्स से ज्यादा किसको कोई जेल में गया था, दैट 7 ईयर्स से ज्यादा जेल में जाने वाला आदमी कैन नेवर बी अपॉइंट एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी। फॉर लाइफ ही हैज बीन disqualified to getting appointed as a director in the company। 6 महीने से ज्यादा जेल खट के आओ, 5 साल खत्म होने के बाद ही इज क्वालिफाइड। 7 साल से ज्यादा जेल में कोई अगर आदमी चला गया है तो ही फॉर लाइफ लॉन्ग ही इज डिस्क्वालिफाइड। नेक्स्ट, an order or disqualifying for him for appointment as director has been passed by a court or tribunal in order in force। कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने उसको मना कर दिया है डायरेक्टर बनने के लिए, देन आल्सो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड डायरेक्टर, वो डिस्क्वालीफाइड है। डिस्क्वालिफिकेशन किसने किया? कोर्ट और किसी ट्राइब्यूनल ने। नेक्स्ट, ही हैज नॉट पेड एनी कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय हिम whether alone or jointly with others, and 6 months have been elapsed from the last day fixed for the payment of the call। जैसे शेयर एप्लीकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। उसने उस फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है किसी कंपनी का, उसने किसी कंपनी में उसका शेयर है और वो फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो,
उसका पैसा उस कंपनी को उसने दिया नहीं है, और उसका नहीं दिया हुआ डेट से 6 महीने पार हो चुका है। नाउ आफ्टर 6 मंथ्स ही इज डिस्क्वालिफाइड टू अपॉइंट। मतलब शेयर में आउटस्टैंडिंग अमाउंट पड़ा हुआ है और कंपनी ने वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट उससे मांगा है, लेकिन उसने वो पैसा कंपनी को दिया नहीं है और उस डेट का 6 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है। A company have asked for the calls to pay and the person have not paid that money and 6 months have been elapsed. Now after 6 months he is disqualified. Next, point number G, he has been convicted of the offense dealing with related party transaction under section 188 at any during the last preceding 5 years. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का एक सेक्शन है, सेक्शन 188, जो आपको मिलेगा फाइनल में, या तो आपको शायद इनकम टैक्स एक्ट में मिला होगा आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म नेट प्राइस, ठीक है। इसमें अगर कोई आदमी का ऑफेंस है, देन दैट पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू अपॉइंट एज डायरेक्टर फॉर नेक्स्ट 5 years. लास्ट, ही हैज नॉट ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, बिना डीन का कोई डायरेक्टर नहीं बन सकता। A person who have not taken the dean is disqualified to appoint as director. And point number last, a private company may be in articles provide for any disqualification for appointment as director. In A से लेकर H तक जो पॉइंट्स है उनको छोड़ के प्राइवेट कंपनी और भी पॉइंट्स अपने से ऐड कर सकता है इन देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। These are the disqualification criteria for a person who cannot be appointed as a director. This is section 164. Last और एक सेक्शन है section 167, one section 68. अगर आप लोग आओगे then we'll continue, और एक सेक्शन है वो section 179, powers of the board. Then after this our company act will be over. So Pratikya, kindly section 164 disqualification क्राइटेरिया ऑफ अ डायरेक्टर देख लेना, और आज का जो इंडिविजुअल डायरेक्टर पढ़ाया था मैंने उसको भी देख लेना। अगर और ग्रुप में बता देना कि whether you want to, you people want to continue with the class or not. If you don't want to continue the class, we will not take the class, we will stop the class here only, ठीक है। अगर आज देख लेना, अब फिर भी कुछ प्रॉब्लम डाउट्स है तो काइंडली व्हाट्सएप मी, माय नंबर इज इन द व्हाट्सएप ग्रुप। इसमें भी कोई किसी टॉपिक में किसी पॉइंट पे कोई डाउट है पूछ लेना। थैंक यू। Next class to 8 hours. Oh, next class